Bismillahirrahmanirrahim. Guys, this is the another very important topic because I started the atomic structure, but first of all, you must have some literal information about the periodic table and two of the very important terminologies which you need to understand. So let's start with the literal information about the periodic table. So this is the periodic table. Okay. So what is the periodic table? We can say that this is a style, or this is a format, or this is a blueprint of chemical world. And this chemical world in which the chemical elements are arranged according to their recurring properties. अच्छा, अब ये तो definition is for the periodic table. Now the question is that how they are arranged. So there are two very important terminologies which you need to understand before understanding the periodic table. Number one is the atomic number. So atomic number or protons, इसको हम कहते हैं, we call them protons. The atomic number or proton number symbol is Z. So Z is equal to number of protons, right? So protons ko you know that I always write proton like this with a plus charge, okay? Because you know that proton is a positively charged species in the atom in the nucleus, okay? So इसका जो symbol है that is the Z. So what is the atomic number? Atomic number is equal to number of protons, ठीक है? इसे हम proton number भी कह सकते हैं, right? And it is the atomic number, and the basis for the periodic table is the increasing atomic number. So the number of each element actually telling us about the number of protons. So they are arranged in such a way that first of all, if the hydrogen is there, so it is placed over here with one, okay? One is the atomic number, means that it has one proton, it has two protons, three protons, four protons, five protons, six protons, seven protons, 8 protons, 9 protons, and neon 10 protons. अच्छा, आज जो मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया है वही एग्जैक्टली आई एम गिविंग यू दिस इंफॉर्मेशन. सेकंड चीज है कि दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज नोन एज द एटॉमिक मास. सो एटॉमिक मास जो है उसका सिंबल जो है हम एटॉमिक मास इज टेकन ऑलवेज इन AMU. तो Z तो हो गया आपका एटॉमिक नंबर. अब एग्जैक्टली ये डबल होता है टू द एटॉमिक नंबर. सो इसकी डेफिनेशन कहते. अच्छा, अब आप ये देखें कि बहुत से हाइड्रोजन है उसमें जो उसके 3 डिफरेंट हाइड्रोजन्स हैं. द फर्स्ट इज नोन एज प्रोटियम, सेकंड इज ड्यूट्रियम, थर्ड इज ट्रीटियम. So in the difference in these three is the presence of the number of neutrons. मैंने आपको बताया था कि जो neutrons होते हैं they are the variables. ये कम ज्यादा होते हैं, लेकिन protons, the number of protons is fixed. And this is the idea of any element. For example, if human beings have 46 number of chromosomes, 22 autosomes and 1 sex chromosome. तो जो 46 से अगर आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 48 हो जाएंगे, then you are no more human being, you will become chimpanzee. So number of chromosomes is the ID of human, ठीक है, species. इसी तरह atomic number is the ID of the element. For example, अगर हम कहते हैं, for example, if I say that hydrogen has 1 proton and helium has 2 proton. So by just the increase or the change in the number of proton, the element is different. Lithium has 3 protons. Lithium is entirely different from helium and hydrogen. Beryllium has 4 protons, entirely different from lithium, helium, and hydrogen, and so on. So remember that atomic number is the ID of the element.
just by adding one proton, you go to the next member which is placed in the periodic table. So I can say that the elements, they are placed within the periodic table by their increasing atomic numbers. Okay, so itni information right now you must have. What is the atomic mass? Now atomic mass क्या होता है कि आपको पता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन जो है वो 3 आपके पास डिफरेंट यू नो फॉर्म्स में आती है. एक का वेट होता है 1, ठीक है, इसमें सिर्फ 1 प्रोटॉन होता है. सेकंड जो उसकी है वर्जन, दैट इज द ड्यूट्रियम. ड्यूट्रियम में 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन. थर्ड वर्जन उसका ट्रीटियम. ट्रीटियम हैज 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स. अब आप लुक एट द थिंग कि न्यूट्रॉन्स वेरिएबल्स हैं. द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इज चेंजिंग in 3 different versions of hydrogen, but the number of proton remains the same. अगर ये number of proton change हो गया, then it is no longer hydrogen. Okay, so ये तो एक आपने चीज जो है ना, for all times come you need to fix in your minds that protons जो होते हैं वो id होते हैं elements की. अच्छा, अब ये जो हम कहते हैं कि जितने भी अब हाइड्रोजन 3 वर्जन्स में है, तो 3 का एवरेज कैलकुलेट हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि इनकी अबंडेंस किसकी कितनी ज्यादा है. सो अबंडेंस के लिहाज से मल्टीप्लाइड बाय द जो भी आपका आइसोटोप का एवरेज आता है, आप उसको उस बर्डन्स वाले जितने परसेंट जो अबंडेंस है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट. हम जब रिलेटिव एटॉमिक मास करेंगे, आई विल टीच यू द एंटायर मेथड how to calculate the relative atomic mass. Let's come back to the periodic table जिसकी के literal आपको information चाहिए. अच्छा, अब मैंने आज स्टूडेंट्स को बताया है कि आपको ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए. हाइड्रोजन, हीलियम, ओके, देन वी कम टू लिथियम एंड beryllium, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम. यहां से आपको इन ये चाहिए: हाइड्रोजन, लिथियम, beryllium, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड इनके एटॉमिक नंबर 1, 3, 4, 11, 12, 19 एंड 20. अब आप इधर आ जाएं. ये आपकी जो लाइन है, दिस वन, लेट मी टेक द रेड वन, ओके, so that you can differentiate. हीलियम से अब आप देखें कि आपने क्या कौन से जो हैं दे आर इम्पोर्टेंट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड. ये पोर्शन आपको पता. बोरॉन के 5, 6, 7, 8, 9, 10. एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन. सो इस पूरे प्रोडक्ट टेबल में जो मैंने आपको चीज बताई है वो ये कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. इन्हीं के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस. इन्हीं के एटॉमिक नंबर जो है वो इंपॉर्टेंट है. इन्हीं की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई कैन गिव यू इन द क्विजेस, सो यू बेटर नो दीज थिंग्स वेरी वेल. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट I am going to use 2 alphabets. Number 1 is the A, okay, and number 2 is the B. ठीक है, 2 अल्फाबेट्स मैंने यूज करने. अब जिसको मैं ब्लू का रंग कलर दे रही हूं, ये look at this. These are the B1. और हम right now we are not talking about them. ये B कैटेगरी है सारी. बाकी आपकी A कौन सी आ गई? This, ये एक 1. अब आप इसकी नंबरिंग को चेक करें कि how they have given you the numbers. Okay, let's go to the numbers.
This is the number 1 and this is A category. This is number 2. ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये 1A है, ओके, ये 2A है, सिर्फ 2 है इधर, इधर से आ जाएं फिर 13A and 14, 15, 16, 17 and 18. These are all A. Okay, these are all A. B कौन से हैं? This area is, which is marked with this blue color, is the B area, right? अच्छा, next thing, point is that come to here. These are known as, the B part is known as transition metals. They are known as transition metals. We are not going to study right now because that's not the content right here. The content is to know some literal information. So ये transition metals हैं. Transition metals are further subdivided into 2 things. Okay, number 1 is the actinide series, lanthanide series, and this one is known as actinide series. इनके नाम हमने इनके starting members से start किया, lanthanide series and actinide series. Now in this actinide series, we have this 92 uranium. Now this uranium has 2 isotopes, uranium-235, okay, uranium-235 and uranium-237. ये 2 हमारे लिए important है, और यही 2 जो हैं, इनका जो difference आता है 2 न्यूट्रॉन्स का, ठीक है, 2 न्यूट्रॉन्स का, that is your nuclear power. ये सारी जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, ये सारा आपके जो न्यूक्लियर वेपन्स और स्ट्रेंथ है, वो इन्हीं की है, न्यूट्रॉन्स की. स्टडी ऑफ न्यूट्रॉन्स, एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, दिस इज कॉल्ड atomic something. Okay, now this first family except hydrogen, this first family except hydrogen is known as alkali metals. Okay, so let's move to this. This is this is except hydrogen. This, अच्छा, अब आप देखेंगे इस तरह there are number 18, ठीक है, इसका मतलब है कि 18 में से 8 जो हैं आपके, 8 जो हैं वो आपकी आ गई सीरीज ट्रांजिशन की, ठीक है, ट्रांजिशन के 8 आ गए, और बाकी जो 10 हैं आपके, वो आपके सारे अदर एलिमेंट्स हैं, right? So let's do this again so that you can understand. एक तो ये चीज है, दूसरी सेकंड चीज ये है कि ये when we go from left side to right side of the periodic table, we have different groups. Okay, we have different groups. These are different I mean groups on the basis of their properties. और अगर हम इनके कलर्स पे जाएं तो लेट्स सी कि ये जो रेड वन है, these are known as, this group is known as, which is in red color, is known as alkali metals. Alkali metals. Okay, the yellow hai, this one, this is called alkaline earth metals. So I can't write the whole word. You please listen it very carefully. Alkaline earth metals. Then we come to here group this 5, यानी कि series आपकी 13 है. Boron family. This is known as boron family. Then we come to this 14. 14 is known as carbon family.
15 is known as nitrogen family. 16 is known as oxygen family. 17 is known as halogen family. And 18 is known as noble family. Okay, this is known as noble family. अब जो आपके ये ग्रे में जो आपके जितने भी हैं ये, these are called metalloids. Metalloids means having both the properties of metals and non-metals. अब ये जो आपको कलर नजर आ रहा है, this color, this one, ये जो सारे हैं, these are called reactive metals. और ये these are known as non-metals and they are highly reactive. ओके, ग्रीन जो आपके पास हैं वो हैं आपके मेटलॉइड्स. ये आपके सारे जो इधर हैं ये, these are called metals. ठीक है, ये metals हैं, ये मेटलॉइड्स, ये नॉन मेटल्स, और जो फ्रोजी में है टर्कोइज कलर में, ये कलर जो है, दिस इज नोन एज नोबल गैसेस. ठीक है, सो लेट मी अगेन रिपीट इट. दिस वन इज नोन एज this one. This red color is known as alkali metals. This light color is known as alkaline earth metals. And these are known as these are known as transition metals. And pink one is known as light pink is called lanthanide series because it is started with lanthanide. Actinide series because it is started from actinide, so this series is called actinide. And here the radioactive element uranium is there, and uranium is the nuclear radioactive element which is used in atomic energy. उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि हमारी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी हमारी सब अनस्टेबल हैं except all are unstable except noble gases. ये याद रखिएगा, ठीक है. All are unstable except noble gases. अब आप ये देखें कि हर जो चीज जो to understand the thing very carefully, आपकी जो हर चीज है, हर एलिमेंट जो है वो अनस्टेबल है except आपके ये जो नोबल गैसेस हैं, ये स्टेबल है, नॉन रिएक्टिव है, इनर्ट है. बाकी सब जो मैंने आपको बताया, हमने इनको अभी स्टडी नहीं करना, सो ये मैं आपको माइनस कर रही हूँ. ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, राइट. मैं आपके बारे में बस वही बात कर रही हूँ जो मैंने आपको मार्क करवाए हैं. ठीक है, लेट्स हैव द मार्किंग अगेन. दिस इज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. फर्स्ट में से आपको ये 3 आने चाहिए. सेकंड में आपको आने चाहिए इनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैसेस, इनके सिंबल, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. फिर आपको आना चाहिए बोरॉन, एल्यूमिनियम, then comes to carbon, then comes to nitrogen, phosphorus, then comes to oxygen, sulfur, then all the members over here from fluorine to chlorine, bromine and iodine. ये आपके लिए important है. इनकी I'm talking right now. I'm talking about these elements. ये सब के 2 तरह के हमारे पास जो लेवल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन. अगर इफ आई से दैट दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है, इस न्यूक्लियस में आपको पता है कि आपके प्रोटॉन्स हैं और आपको पता है कि आपके न्यूट्रॉन्स, आई मीन आपके नहीं, एलिमेंट एटम में. सो न्यूट्रॉन एक के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0, और प्रोटॉन यू नो कि दिस इज प्लस.
So outside the plus, whenever we say that plus positive charge is there, it means कि negative charge must be there. तो नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो ऑर्बिटल्स में होते हैं. सो पहले ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन अपने आप को अकोमोडेट करते हैं वो ओनली नंबर 2 होते हैं, और इस पहले शेल को हम कहते हैं, जो कि एस ऑर्बिटल होता है, इसको हम कहते हैं डुप्लेट. डुप्लेट मीन्स के मैक्सिमम 2 electrons can occupy this area. 2 electrons can occupy this area. इसके बाद जो सेकंड शेल होता है उसमें टोटल नंबर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के 8, उसे हम कहते हैं ऑक्टेट. We call it octet. ठीक है, octet means 8. अब if you look at the periodic table, only these noble gases जो हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, xenon and radon, they have 8 electrons. इसमें आप हीलियम को निकाल दें, क्योंकि हीलियम के 8 नहीं बल्कि 2 हैं, तो वो डुप्लेट है उसका कंप्लीट. रेस्ट अगर आप ले लें नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, xenon, रेडॉन, इनके ऑक्टेट कंप्लीट है. ऑक्टेट कंप्लीट होने से these are stable, these are not reactive, these are inert. So हर एलिमेंट जो है, बाकी सब जो है वो अनस्टेबल है, इनकम्प्लीट है, आइदर उनके डुप्लेट और उनके ऑक्टेट. तो हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन ऐसी है जिसका के डुप्लेट इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट करती है अपना डुप्लेट. लिथियम के पास अगर हम इसके एटॉमिक नंबर पे जाएं तो 3 प्रोटॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके फर्स्ट ऑर्बिटल में आपने अकोमोडेट कर दिए, राइट, ये आपने 2 अकोमोडेट कर दिए. अब जो थर्ड रह गया है वो सेकंड ऑर्बिटल में जाएगा, बिकॉज द कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिटल इज ओनली 2, 1 इज लेफ्ट. ठीक है, तो ये जब लेफ्ट, इसको ये लूज कर देगा. ओके, इट लिथियम इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं रखेगा. when we study the ionic bonds and covalent bonds, then you will understand. So lithium will get rid of this electron. Okay, in doing so उसकी जो isoelectronic configuration है now वो हीलियम के साथ मैच करती है. हीलियम 2 है, डुप्लेट कंप्लीट है, स्टेबल है. उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएं ब्रिलियम की तरफ. ब्रिलियम भी सेम, ब्रिलियम जो है इट विल वर्क के 2 इलेक्ट्रॉन्स ब्रिलियम के यहाँ पे अकोमोडेट हो गए. ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 4. इट मींस के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, 2 फर्स्ट शेल में, और बाकी 2 जो बच गए हैं वो भी इधर ही होंगे. सो ब्रिलियम कितने इलेक्ट्रॉन्स से छुटकारा हासिल करेगा? 2 से. सो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा अपने ब्रिलियम. तो ब्रिलियम की भी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फिर डुप्लेट हो जाएगी, और डुप्लेट जो कॉन्फ़िगरेशन है आपकी, डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फिर हीलियम के साथ आती है. नाउ कम टू बोरॉन. बोरॉन का भी सेम है, राइट. कार्बन की तरफ आ जाएं. कार्बन शेयरिंग करती है. अब आप सोडियम की तरफ आए, उनको छोड़ दें, आप सोडियम की तरफ आए. सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं 11. फर्स्ट ऑर्बिटल में कितने होंगे? 2. सेकेंड ऑर्बिटल में कितने होंगे? 8, क्योंकि सेकेंड की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8. What's the capacity? Let me draw it again so that you can understand clearly. Let me go for this
So this is first orbital of sodium, 1 and 2. Okay. Then we come to the second orbital. सेकेंड ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. अगेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हम लेंगे इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स कर दिए हमने. टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? सोडियम के 11 हैं, यहाँ हमने 10 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. जब 10 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो फिर अगेन भी हमारे पास अभी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो है हमारे पास. तो उसके लिए हमें ऑब्वियसली थर्ड लेवल पे जाना पड़ेगा उसको अकोमोडेट करने के लिए, राइट? टू अकोमोडेट दैट सिंगल इलेक्ट्रॉन वी नीड टू गो टू द थर्ड एनर्जी लेवल. और इस थर्ड एनर्जी लेवल में वी पुट 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, इस थर्ड एनर्जी लेवल में वी विल पुट 1 इलेक्ट्रॉन. सो अब आप काउंट करें कि थोड़े all the 11 electrons are there in the different shells of sodium. Now it's very easy for sodium to, ये एक जो रह गया है क्योंकि इसके लिए 7 यहाँ पे लाना बहुत, it's a very big job, okay, impossible job. So it will get rid of this 1 electron. In doing so now इसकी ये जो outermost orbital है, it is now isoelectronic with who? 10 है ना, तो कि इसके साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो रहा है क्योंकि नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इज दैट क्लियर? इसी तरह अगर आप पोटेशियम को लें तो पोटेशियम के 19 है. 2 इन द फर्स्ट शेल, 8 इन द सेकंड शेल. ठीक है, सो कितने हो गए? 2 and 8 10 और 8 हो गए इसके थर्ड शेल में और फोर्थ शेल में एक रह जाएगा. वो जब एक इलेक्ट्रॉन इसका चला जाएगा तो फिर इसकी जो है क्या कहते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो 18 होगी और 18 किसकी है? आर्गॉन की. तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा आर्गॉन के साथ. सो दिस इज हाउ दे वर्क. सो यही आज मैंने क्लास में स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किया था सारा. यही ऑल दिस स्टफ कि how what is meant by the isoelectronic with next electronic configuration. और वो आती है नोबल गैसेस की और इनकी आती है नोबल गैसेस जिनको कॉमनली वी कॉल देम इनर्ट गैसेस, रेयर गैसेस एंड सो ऑन. तो ये टेक्निकल चीज आपको समझनी चाहिए. सो इससे पहले कि हम जो है वो थॉरली स्टडी करें एटॉमिक स्ट्रक्चर को, ये थोड़ा सा टेक्निकल आपने इनकी चीज़ों को समझना है. आई होप कि आपको ये जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया होगा. थैंक यू सो मच.